Hey TJ. Yeah, Knock knock. not. Who is there? It's Kimberly. Positively Kimberly. Yeah, I've got some cards for you right here for your own weekly Zodiac reading. ओके नमस्कार सुप्रभात हम लाए हैं पॉजिटिवली किम्बर्ली शो जहां आपको मिलेगी आपकी मंथली और वीकली ज़ोडिएक रीडिंग। तो मैं टीजे और किम्बर्ली लाए हैं आपके लिए आपकी वीकली रीडिंग कुछ कार्ड्स के साथ। Make sure you go to the link in the description. That way you can just skip right along to your Zodiac sign. That way you're not wasting any time trying to find yours. Yeah. We'll see you later. Bye. Happy New Week, Aries. How are you? I hope you're doing fabulous. नमस्कार हम लाए हैं वीकली रीडिंग। Well, hey, so I've got some cards for you. TJ, will you do the honors of picking them out for us? तो ये सप्ताह हम लाए हैं मेष के लिए वीकली रीडिंग। तो स्टार्ट करते हैं, चुनेंगे 3 कार्ड आपके लिए इस सप्ताह। Card number 1. Ooh. Card number 2. That's a good one. Hey. 3 कार्ड मेष के लिए, ध्यान से देखिए। These are awesome cards. So, कार्ड नंबर फर्स्ट। the first card that we're going with is Lightning Power. Now, your guides are saying that this is time for you to really develop that own power because it feels like you sometimes forget how wonderful and powerful you are, that you truly create this world around you. Your guides want you to take control again of who you are and who you've been destined to be since the moment that you stepped foot onto this earth, or really just took your first breath. Your guides are saying to hone in on this power that you have inside of you and remember how strong, courageous, and wonderful you are. मेष, आपका ये कार्ड इस सप्ताह ये बताता है कि आपके दिमाग में कुछ उधेड़-बुन चल रही है। मैं वापस कहना चाहूंगा उधेड़-बुन चल रही है। कहने का मेरा तात्पर्य इतना सा है कि पिछले कुछ सप्ताह से, कुछ महीने से कुछ काम में रुकावटें आ रही हैं, जिस पे बार-बार आपको ये लगने लगा है कि ये काम मेरे लायक नहीं है, या ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, या ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, सप्ताह आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट सप्ताह के मध्य में और सप्ताह के अंत आते आते आपको अपने ऊपर ये ध्यान रखना है कि आपके साथ आपकी ब्लेसिंग है, आपके काम के साथ आपकी वो एनर्जी है, वो लाइटनिंग है, वो पावर है जो आपको आपके ट्रेड्स पर, आपकी एबिलिटीज पर बार बार आपको ये महसूस कराएंगे, बिलीव कराएंगे कि आप ही हैं वो जो इस काम को पूरा कर सकते हैं। तो डरिएगा मत, रुकिएगा मत, काम करते रहिए, क्योंकि आपके लिए ये परफेक्ट स्पॉट है, ये परफेक्ट वीक है। Second card. Card number 2, coming through. Alrighty, what we have for you is Spring Equinox Rebirth. Now your guides are wanting you to know that this is a brand new time in your life. It seems like you've gone through really dark times. And what I mean by this is they've been kind of confining, like there's been walls kind of pressing in on you. Well, you know what? That happens whenever you're about to be birthed in general. But this is telling you that you have come through that birth canal. And yeah, I know it was painful. And I know that it was really warm and fuzzy in there because that's our comfort zone. But your guides are saying out in this light, out in this cold, weird world that we've somehow ended up in, you are an amazing soul, but you have this beautiful light, this beautiful life that's filled with unlimited possibilities right in front of you, ready to take. Second card. जैसा कि पिछले कार्ड में आपको पता चल रहा था, पिछले कार्ड में बात हुई थी आपके पावर की, आपकी उधेड़-बुन की, आप किसी काम को अटैक नहीं की। तो ये कार्ड आपको बताता है कि प्लीज अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आइए। देखिए, कंफर्ट जोन से बाहर आने का मेरा सीधा तात्पर्य ये है कि अगर किसी काम में आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो देखिए वहां कहीं ना कहीं आप अपने कन्वीनियंस के लिए कुछ काम कर रहे हैं। हो सकता है कन्वीनियंस के कारण उस अपनी एक आपने जो बाउंडेशन लगा दी उससे बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, इस सप्ताह आपको अगर कुछ चीज रोकती है, ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इस चीज को सेफ्टी पॉइंट पे लेके चलना है, तो ध्यान से उस चीज को वापस रीवैल्यूएट कीजिए। कहीं वो आपका कंफर्ट जोन तो नहीं है, कहीं वो आपको प्रोग्रेस से रोक तो नहीं रहा। तो इस सप्ताह आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी बाउंड्रीज को अपने लिए प्रॉब्लम ना बनने दें। थर्ड कार्ड। Card number 3 is Lake Stillness. Now notice how this lake is like crystally calm, how not even a ripple is in this lake, period. So your guides are wanting you to find this place of peace within yourself, and I'm feeling like this is something that you've been working on developing for a long time. Now just trust that it's there for you, for your benefit, and whenever the world starts going a little chaotic,
You can always come back to yourself and make decisions from that place of peace, that place of stillness and joy. तीनों कार्ड ही आपको इस तरफ से इशारा कर रहे हैं कि आपको अपनी चीजें बदलने की जरूरत है। जैसे कि मैं कहूं कि इस कार्ड के अंदर स्टिलनेस शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर बहुत फर्म है। वो हो सकता है किसी निर्णय को लेकर, वो हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर टारगेट को लेकर, वो हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर प्रक्रिया या आपके प्रोसेस को लेकर। तो इस सप्ताह में यही कहना चाहूंगा, रिवैल्यूएट कीजिए अपने प्रोसेस को, देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन आपको उस जगह पर लाकर स्टिक कर रहा है, लेकिन वहां स्टिक होने की जरूरत नहीं है। अपने को पहचानिए, गो थ्रू फ्रॉम द प्रोसेस, अपने टारगेट को पहचानिए और वापस अपने कार्य में लग जाइए, बिकॉज कर्मा इज द बेस्ट थिंग ऑल ओवर इन योर वर्ल्ड। ओके, That's what we've got for you. I hope you have a fabulous day and a fabulous week to come. It seems like it's going to be great, don't you think? Yeah. सप्ताह आपके लिए अच्छा है, बस कुछ बातों का ध्यान रख लीजिए और अपने ऊपर विश्वास कीजिए। मिलते हैं नए वीक पे। नमस्ते। See you later. Follow me on Facebook and Instagram for your daily readings. Hey Taurus, how are you? नमस्कार, आपका स्वागत है वृषभ इस सप्ताह की ज़ोडिएक रीडिंग में। आशा करता हूँ पिछले सप्ताह आपके साथ अच्छा रहा होगा। हम इस सप्ताह हम निकालेंगे वैसे ही आपके लिए कोई भी 3 कार्ड। Kim, we need 3 cards for Taurus. How about choose 3 from this deck right here? All cards are Card number 1. first. Card number 2. And third card. Card number 3. आपके लिए ये 3 कार्ड। Second, third. We have some really cool cards here. Now your guides want you to know that this is all going to turn out okay. First card we have for you is Rain Purification Reversed. Now, what this means for you is that sometimes whenever we like to clean things out, whenever we purify our souls and our bodies of things, we start craving other things. Like for example, whenever you decide, hey, I'm gonna cut out sugar or go on like a sugar cleanse of some sort, immediately, even if you haven't wanted it for a while, your body's gonna want to start eating sugar right again like that. But that doesn't necessarily mean that you're supposed to give in to those cravings. What it means is that it's time for you to really realize if what you're saying, what you're committing yourself to is worth it. So if you have someone popping up in your life that you've decided that you were done with for sure, that's what this is all about. It could be a person, this could be a trauma that you've been trying to work on cleaning yourself of, or it could be something like I said about a cleanse, a physical cleanse with your diet or sugar. Rain purification. वृषभ, इस सप्ताह आपका ये कार्ड बता रहा है कि आपको कुछ ना कुछ एक ऐसा निर्णय लेने की जरूरत है जो आपकी पिछली सारी आवश्यकताओं को या पिछले सारे मैं कहना नहीं चाहूंगा, हो सकता है पिछले गलतियों को या पिछले छोटी सी कठिनाइयों को वापस ठीक कर दे। देखिए होता क्या है, हम किसी भी काम को जब करते हैं तो हम एक प्रोसेस के अंदर जाते हैं। हमें रिजल्ट से इतनी आशा नहीं रखनी है, हमें प्रोसेस के ऊपर जाना है। तो ये प्यूरिफिकेशन ये बताता है कि आपको वापस इस वीक अपनी पुरानी चीजों को प्यूरिफाइड करने की जरूरत है। आपको देखने की जरूरत है कि किस तरीके से आपके वो प्रक्रिया काम में आ रही है, किस तरीके से आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए आपकी पर्सनैलिटी आपकी बहुत अच्छी है, बहुत बिलीव है, आपने खुद का बहुत रिजिड है आप अपने फंडामेंटल्स को लेकर, लेकिन बार बार देखिए आपको रिवेल्युएट करने की जरूरत पड़ रही है। इस सप्ताह जरूरी है कुछ नई चीजें ऐड करने की और पुरानी चीजों को नए तौर पे लाने की। तो बात करते हैं दूसरे कार्ड की। Card number 2. We have this river movement. Okay, so in this sense, your guides are saying that it's time for you to realize that you've been moving very fluidly and effortlessly through this really, I'm feeling like there was a lot of trauma that you've really been dealing with and you've been coming to peace with in your own way. Now, what this means is that your guides are saying that you are actually moving and developing and that this is something that's been happening very, very quickly for you. Now keep in mind these rapids, these really rough rapids that I feel you've been going down have really ceased. And a lot of times, at least for this week, it's gonna be a much more smooth, fluid motion, not trying to, buck you off like it's a bull. It's not gonna try to do that to you. So just enjoy the ride this time.
दूसरा कार्ड आपको एक चीज के बारे में अंदेशा दे रहा है, एक हम कहेंगे आपको एक थोड़ा सा आशा की किरण दे रहा है। देखिए पिछले कुछ सप्ताह में, पिछले कुछ महीनों में आपके साथ एक थोड़ा सा ट्रॉमा रहा है। ट्रॉमा इन द सेंस कि हो सकता है कुछ कठिनाई रही, हो सकता है कुछ आपकी असफलता थी जो आपके दिमाग में अभी तक घूम रही थी। वो आपका कोई एग्जाम, आपकी जॉब, आपका रिलेशनशिप या आपके घर के कोई सगे संबंधी या क्लोज के साथ कोई घटना भी हो सकती है। तो देखिए इस सप्ताह वो चीज़ आपके पास से थोड़ी दूर जाने लगेगी। वो जो थोड़ा सा आपके पास पेनफुल सब्जेक्ट था वो आपसे दूर जाने लगेगा, आपसे दूर होगा और वापस आप कंसंट्रेट करेंगे खुद के ऊपर। ये मूवमेंट आपको बता रहा है कि इस सप्ताह आप वापस अपने दिशा में अग्रसर होंगे, वापस अपने एम की तरफ बढ़ेंगे। और इस सप्ताह अगर आप कुछ सोच रहे हैं कुछ नया करने के लिए, तो बिल्कुल ये परफेक्ट समय है। और आपकी एबिलिटीज के हिसाब से आप अपना कार्य, जो भी आप क्रिया करेंगे, जो भी आप इस प्रोजेक्ट में जाएंगे, किसी भी नौकरी में जाएंगे, वहां अच्छा ही रिजल्ट पाएंगे। इस सप्ताह आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। थर्ड कार्ड, Card number 3. We have this iceberg submerged reversed. Now, I'm feeling like you're really seeing this end goal here. And what this is saying that you see most of the big picture. You feel like you can see that peace. You can feel like you see that happiness, that joy that you really want to embody and you want to have envisioned for your entire life. Now, you're not seeing all of the little bitty teeny tiny pieces to get you there, which is okay. You are seeing that big picture, but just keep in mind how you get from point A to point B isn't always going to be, well, in the cards. So what they're saying is get used to not knowing every detail and just trust your own flow. After all, you are moving very smoothly right here. देखिए थर्ड कार्ड में आइसबर्ग क्लियर करता है कि देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक टिप ऑफ आइसबर्ग होती है, आपकी डिटेलिंग होती है आपकी काफ़ी ज़्यादा, और उसका थोड़ा सा पॉइंट आपके लिए प्रदर्शित होता है। तो इसी तरीके से आपको इस सप्ताह कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा किसी भी प्रोसेस में आप हैं या किसी भी जॉब प्रोफाइल में या किसी भी एग्जाम में बात कर रहे हैं, किसी रिजल्ट को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसका सब्जेक्ट मत देखिए, उस चीज को डिटेल में जाइए, सॉरी डिटेल में ना जाइए, आप अपने ऊपर बिलीव कर लीजिए। क्योंकि देखिए कई बार क्या हो रहा है, सप्ताह आपको तकरीबन दूसरे या तीसरे दिन ऐसा लगने वाला है मिड ऑफ द वीक में कि जहां वापस क्वेश्चन मार्क क्रिएट होगा कि उन चीजों को लेकर जो पुरानी आपके साथ हुई है। तो इस सप्ताह ध्यान रखिएगा, आपको ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है, आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको ऊपरी तौर पे समझ लीजिए। ज्यादा उसकी डिटेल में जाएंगे तो फिर आप उसी ट्रॉमा में फंस जाएंगे जिसमें पिछले कुछ महीने कुछ साल से हैं आप। तो अपने ऊपर बिलीव रख लीजिए, क्योंकि ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा सा चेंज लाने वाला है और आपके रिजल्ट को आपके लिए एक्सपेक्टेड बनाने वाला है। तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा होगा, मैं आशा करता हूं। फिर मिलेंगे नए कार्ड्स के साथ, मैं और किम। आज की वीक की प्रेडिक्शन यही है। थैंक्स। That's what we've got for you, dear Taurus. I hope you have a fabulous week, and we'll see you next time. Bye. नमस्कार। Check out my meditations and affirmations playlists on this channel. Hey, Gemini. How are you? नमस्ते मिथुन। हम बात करेंगे आपके लिए सप्ताह क्या लेकर आए हैं, क्या वो 3 कार्ड्स आपके लिए सप्ताह को अच्छा बताने वाले हैं या ये सप्ताह थोड़ा सा मिलता जुलता रहेगा। तो बात करते हैं 3 कार्ड्स की, निकालेगी किम्बर्ली। 3 cards. We've got some cards for you. Let's see what they're going to be for this week. Card number 1. Card number 1. Card number 2. Card number 2. Card number 3. 3 कार्ड इस सप्ताह आपके लिए मिथुन। Are you going to show the second? There we go. I'm sorry, I'm choking on my own spit. Okay, first card we have is Volcano Volatility. So this is saying that things are going to be shaken up for you quite a bit. Your guides are saying that don't be scared just because something changes drastically. I feel like you're more or less going to want to be stuck in your own comfort zone rather than be willing to change, and that's really going to cause a little bit of tension inside of you. But ultimately your guides are saying that it's okay for you to bend with the wind. You don't have to blow up, and getting out of your comfort zone is actually ultimately going to be the best thing this week. So go a little easier on yourself, okay? मिथुन, इस सप्ताह थोड़ा सा आपके लिए मिला जुला सा रहने वाला है, लेकिन सप्ताह के अंत आते आते ये चीजें बढ़िया होने वाली है। कार्ड आपका ये शो कर रहा है कि
इस दौरान इस सप्ताह किसी काम को लेकर आपके दिमाग में या आपके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आ सकता है। हो सकता है ये कोई भी एक पुरानी समस्या फूट कर इस सप्ताह में आपके सामने आ सकती है। वो पिछले आपकी प्रोजेक्ट हो सकता है या पिछली कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जो आप बहुत समय से सोच रहे हैं कि नहीं ये मेरे लिए प्रॉब्लम आएगी या ये हो सकता है आपके लिए आगे जाके डेंजरस हो। अच्छा, मैं परिणाम के बारे में कहूँगा कि परिणाम इतना ज़्यादा आपके लिए इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा, चीजें निकल जाएगी, लेकिन इस सप्ताह ध्यान रखिएगा कुछ पुरानी बातें या पुराना प्रोजेक्ट या पुरानी असफलताएं आपका सामना कर सकती हैं, तो ध्यान रखिएगा। बट फिर भी कहूंगा खुद पे बिलीव रखिए, आप इस सप्ताह इस चीज से भी गुजर जाएंगे। सेकंड Card number 2. What we've got for you is ocean ebb and flow. And I'm feeling the word ebb here. Your guides are saying that it's time for you to more or less start taking a little bit rather than just pushing and giving. And what I mean by that is I feel like you're used to really putting in effort. You're used to being this go driven kind of person. But it's sometimes whenever someone tries to give you things, you're like, actually, no, I don't deserve it. But the fact that you're willing to put in all of this work means that you do deserve it. Your guides are saying that this is time for you to really start accepting those things. There's a natural ebb and flow to life, and it's time for you to remember that it's okay for you to receive as well as give. एबन फ्लो सप्ताह बताता है, ये कार्ड आपका ओशियन एब एंड फ्लो बताता है कि इस सप्ताह आपकी चीजें एक नॉर्मल फ्लो में, उसी पॉजिटिव फ्लो में जा रही हैं जिस फ्लो में वो नेचुरली कंस्ट्रक्टेड है। मैं वापस कहना चाहूंगा, पिछले कार्ड में जैसे मैंने आपको बताया कि वॉल्केनो था, तो इस कार्ड में वही बता रहा है कि आपका वो समस्या इस सप्ताह आएगी, आप उसका सामना करेंगे, उसको नेचुरली वे में आप अडॉप्ट भी कर लेंगे। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि सप्ताह आपकी समस्या या आपकी कुछ प्रॉब्लम अगर पुरानी आती है तो आप बहुत नेचुरल तरीके से अपने बिलीफ सिस्टम से, अपनी पॉजिटिविटी से, या मुझे कह लीजिए आपकी ट्रेड्स को लेकर आप कंफर्म हैं और आप उनसे ओवरगो कर जाएंगे। ठीक है, तो इस सप्ताह आप परेशान मत होइए। अगर कुछ भी पुराना आपके सामने आ रहा है तो निश्चिंत रहिएगा, शुरुआती सप्ताह में ये प्रॉब्लम लगेगी, लेकिन आपका सप्ताह आखिरी आते 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 चीजें पॉजिटिव रोड पे खत्म होने वाली हैं। थर्ड कार्ड, Number 3, we have wind activation reversed. So it might seem a little bit still here, but that's not really what's going on. There's a natural up and down to life itself. So, let me steal this piece of paper that you love. Let me steal this piece of paper, actually. yeah, you can see. Well, that one's written on. Hold on, I'm coming with a visual, guys. Okay, yeah, I'm coming with a visual. So, there's this natural up and down to life. Aha! Okay, can you see that? It's awesome, right? Okay, so you start right here and it's this little valley. And then you get up, and that's the highest vibration that you've ever been for yourself. That's the best you've ever been, and then you dip down. That's natural, it's okay. This is what you're in right now, this little dip. It might seem a little stagnant, like nothing's really going forward, but all in all, your guides are saying that you are about to launch. And I mean launch as high as you possibly can go. Just remember that there's this natural cycle. You're gonna do another dip, but you're gonna launch again even further and higher. And I'm feeling like you're really reaching towards your goals and you're gonna get there ultimately. Now this is just a never-ending pattern, and your guides are really wanting you to know that it's okay. It's okay for you to go down a little bit. It's natural. Take the time you need and then shoot back up whenever you're ready, but don't do drugs because I feel like that sounded like that. थर्ड कार्ड बताता है विंड को लेकर। तो जैसे कि मैं अभी पिछले कार्ड में बात कर रहा था कि सप्ताह थोड़ा सा मिला जुला रहने वाला है, पुरानी चीज़ें निकल के आएंगी, लेकिन आप उसको चीज़ों को उभर के आ जाएंगे। तो कहने का वही तात्पर्य है कि वो जैसे कि पिछले अभी कार्ड में इन्होंने बताया कि वो अप एंड गोइंग सिचुएशन रहेगी। तो देखिए लाइफ ऐसे ही चलती है, लाइफ इज जस्ट लाइक इन अ वाइब्रेशन मोड। लाइक आपका शुरुआती अप लेवल आएगा, फिर आप नीचे जाएंगे, फिर आप बढ़ेंगे, फिर नीचे जाएंगे। तो देखिए कि एक पैटर्न है लाइफ का, क्योंकि आपकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ होनी है, वो इस सप्ताह है, इस साल भी है, लेकिन वही है कि वो थोड़े से मूवमेंट डाउन आएंगे, फिर आप फॉल आएंगे, मतलब अप एंड डाउन चलता रहेगा। तो इस सप्ताह भी वही है, आप चीजों से उभर के आएंगे। और देखिए ये आपकी पर्सनालिटी को बनाने वाली है। अगले सप्ताह जब आप मिलेंगे, जब आपकी कार्ड्स की रीडिंग होगी, तो देखिए जैसा कि मैं श्योर हूं आपके पास कुछ पॉजिटिव नोट्स पर रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो सप्ताह का आप मजा लीजिए, और ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा
मिला जुला पर आखिरी समय होते होते अच्छा होने वाला है। तो ये है आपकी सप्ताह की रीडिंग। हम फिर मिलते हैं नए सप्ताह पर नए कार्ड्स के साथ। पॉजिटिव किम्बरली एंड मैं टीचिंग। Namaskar. I hope you have a fabulous week, and remember that everything's gonna be okay. You are awesome and brilliant in every single way. We'll see you next time. Bye! Follow me on Instagram for your daily affirmation and spirit-guided message. नमस्कार, स्वागत है आपकी वीकली रीडिंग में। हम बात करेंगे सप्ताह कर की। मैं टीजे ये किम्बरली। तो देखते हैं कौन से 3 कार्ड इस सप्ताह आपका डिसाइड करते हैं कैंसर के लिए। Hey Cancer. So we've got some cards for you. They're actually right here, and they're going to be applicable for this entire week. So make sure that you save this, and you can come back and reference it whenever you need to. But your guides are saying that this is going to be dead on for you. Hold on to your horses. 3 कार्ड। 3 cards. Look, remember one First, is cheating. man. He's not, I promise. I wouldn't hire Oh, a sorry. cheater. Second. Card number 3. So these are 3 cards for you, Cancer. कर के लिए 3 कार्ड। See, I told you it's going to be a good week. Card number 1. Card number 1 is meta vulnerability. Now, this is urging you to get out of that comfort zone of yours and allow yourself to be seen as that authentic, beautiful person that you are on the inside. It doesn't matter who sees you. Ultimately, you're the only one that's going to have your body in your life for the rest of your life. So, if you feel like going out into the middle of the street and doing a little dance, do it, because it really doesn't matter who sees you, and it doesn't matter really any of this. So if you have to do that to feel authentic and really show your most authentic self, do it. Do whatever you need to do. You are totally worth it. नमस्कार कर्क। इस सप्ताह आपका पहला कार्ड है जो वल्नरेबिलिटी। देखिए, अपने आप को बांध के मत रखिए। इस सप्ताह ये कार्ड आपको यही शो कर रहा है कि आपके पास ऐसे बहुत मौके आएंगे। सप्ताह 7 दिन है, 14 मौके, 21 मौके पे 21 मौके काफ़ी आएंगे जहाँ आपको बार बार ये लगेगा कि अब आपको खुलने की ज़रूरत है। बार बार ये लगेगा कि अब आपका प्रोस्पेक्टिव थोड़ा हाई हो सकता है। तो देखिए, ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। इसे कहूँगा मैं, हैप्पी गोइंग वीक है बहुत आपका। बस ये ध्यान रखिएगा, कोई भी अपॉर्चुनिटी आए उसको ग्रैब कीजिए, क्योंकि ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सेकंड कार्ड। Card number 2. We have is wind activation. This is time for you to really start moving and developing in those ways that you want to. And I'm really feeling like this card again in this meta vulnerability. Sometimes you have to get out of that comfort zone. Sometimes you have to get out of that comfort zone. Sometimes you have to allow people to see you for who you are in order for you to truly grow and develop into that highest self, that being that only you vision yourself to be. That is what you need. This is completely applicable. You are starting a different section of your own journey, and your guides want you to know that this part is the brand new beginning, and you are moving so quickly and rapidly in this moment. देखिए, दूसरा कार्ड काफी अच्छा है। ये सप्ताह आपका काफी अच्छा रहने वाला है, इसलिए थोड़ा सा इजी सा हो गया था। तो देखिए, एक्टिवेशन इस सप्ताह भी यही है कि आपकी चीजें आपको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने का मेरा मतलब है कि पुरानी सारी चीजें जो आपने अचीव करी हैं या जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं वो वापस निखर के आने वाली है सप्ताह की। तो अपॉर्चुनिटीज काफी हैं आपके लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है या एकदम से कोई बहुत ही बड़ी आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है, लेकिन छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज है। जैसे अगर मैं बात करूँ, आपके ऑफिस के लेके बात करते हैं, तो आपको कोई प्रोजेक्ट मिला या किसी के पास अपनी रेफरेंस देने का आपके पास एक मौका मिल रहा है, या कह लीजिए पैसे संबंधी अगर मैं बात करूं तो छोटा सा इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, चाहे वो म्यूचुअल फंड है या किसी शेयर को लेकर निवेश है। तो कुछ भी ऐसा कार्य जो आपके लिए सप्ताह होने जा रहा है, जो हो सकता है नया है या हो सकता है कुछ पुराना है, आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेके आने वाला है। थर्ड कार्ड। Card number 3. We have Aspire Passion. So, with both of these cards in mind, your guides are really wanting you to know that it's time for you to really embody this passion of your very own. They're saying that it's time for you to figure out what lights that fire. And whenever you figure it out, do not let go. Do not make
make any sacrifices. Your guides don't want you to put your passions, your loves, your desires on the back burner anymore. This is time for you to live and truly figuring out what living means to you. देखिए तीनों ही कार्ड परफेक्ट हैं सप्ताह आपके लिए, ये वीक आपके लिए बहुत परफेक्ट है। कुछ भी काम कीजिए, मन से कीजिए, पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। और अगर इस सप्ताह एग्जैक्टली आपको मोमेंटस नहीं मिलता है, वो इंस्टेंटेनियस नहीं मिलता है कि आपने कोई काम करा मिला तो, लेकिन वीक के अंत आते आते वो आपको एग्रीगेटिवली रिजल्ट देने वाला है। बहुत शानदार सप्ताह है। ये कार्ड में आपका ये बता रहा है जिस काम को आप कर रहे हैं, आप बहुत पैशनेट है उस काम को लेकर, डेस्परेट है, कर लीजिए, करते रहिए, क्योंकि रिजल्ट आपको मिलने वाला है और ये आपकी पर्सनैलिटी, आपके फ्यूचर को बिल्ड कर रही है। कोई शंका मत रखिए, ये सप्ताह आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। तो these are all 3 cards for you. Hope you have a fabulous week and it seems like it's going to be fiery to say the least. धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए सप्ताह नए कार्ड्स के साथ। नमस्कार। See you later. Bye. Follow me on Facebook for your opportunity to have your questions answered every day. Hey, how's it going, Leo? I hope you're having a fabulous week. My name is Kim, this is TJ. We've got some cards for you right here. नमस्कार, इस सप्ताह में आए हैं आपके लिए कार्ड्स लेकर। तो ये सप्ताह किसके लिए है, बात करते हैं लियो सिंह की। तो निकालेंगे हम 3 कार्ड आपके लिए इस सप्ताह। 3 cards. 3 cards, let's see what they are. 1. Cool. 2. 3. Ooh. तो ये 3 कार्ड्स इस सप्ताह सिंह के लिए, लियो। I like these cards, Leo. कार्ड नंबर फर्स्ट। Card number 1 we have is Desert Vision Quest. So this is saying that this is time for you to really hone in on those dreams of yours. Remember, you are the only one that has been given this goal, this vision to accomplish in this life. Now, what I mean by that is you're the only one with this particular set of skills, desires, dreams, and drive to really go. Oh, that's a lot of D's. Desires, dreams, drives. Desert. Whatever. Desert. Good eye. So, your guides are saying that it's time for you to get out of that comfort zone, perhaps even connect with yourself in nature if you possibly can. A lot of times, Desert Vision Quests, what that really means is for someone to go out into the desert, or go out into the wilderness all by themselves, and with very little food, very little water, and connect with nature. Maybe this is time for you to connect with your dreams once again. What was the initial vision for yourself whenever you started doing whatever you're doing? सिंह लियो, बात करते हैं इस कार्ड की डेजर्ट, बात करते हैं विजन क्वेस्ट की। देखिए, जैसा कि हम रेगिस्तान को देखते हैं, रेगिस्तान में आपके पास क्या होता है? रेत, और क्या नहीं होता? पानी, फूड, वो कंफर्टीज। लाइक अगर मैं बात करूँ, आपको चाहिए पंखा नहीं है, एसी नहीं है। तो बात यही है कि रेगिस्तान में जिस तरीके से आप अपने संसाधनों के साथ नहीं जाते हैं, तो इस सप्ताह भी यही है कि आप अगर किसी काम को लेकर, किसी अपने एम को लेकर, किसी ड्रीम को लेकर थोड़े से भी कंसिस्टेंट हैं, तो इस सप्ताह ऐसी कोई परिस्थिति आने वाली है जहां आपको लगेगा कि मेरे लिए पास ये रिसोर्सेज नहीं है। वो कोई सपना या कोई बिजनेस भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए, आपको तोड़ा जा रहा है। तोड़े जाने से मतलब है कि देखिए, अगर आपको सोना बनना है तो आपको तपाया जाएगा। तो इस सप्ताह कुछ यही होने वाला है। तो बिलीव रखिए अपने ऊपर। अगर इस सप्ताह कोई काम कर रहे हैं और आपको संकट लगता है, आपको लगता है कि नहीं मेरे पास संसाधन नहीं है, आपको ये महसूस कराया जा रहा है आपके स्टार्स द्वारा, क्योंकि आपको कुछ प्रोडक्टिव करना है और इस सप्ताह कुछ नया निकल के आने वाला है। सेकंड कार्ड, Card number 2. We have the summer solstice radiance. Now there's this beautiful light within you that only you can shine, and that's kind of going with this as well. So your guides want you to remember what makes you so unique. What makes you this beautiful being that everyone seems to be attracted to? You as a fire sign itself is really bright, what you have going on. And sometimes you're just kind of going off and doing whatever you're doing and you don't realize the effect that you have on people. But what you leave in this world is so unique, so bright, so cheerful that it's hard for other people to forget you in general. That's why so many people are drawn to your energy and your personality altogether. It's time for you to remember that radiance that you have, because everybody else can see it. Can you? देखिए सेकंड का इस सप्ताह में बात करते हैं।
इस कार्ड में ये महसूस हो रहा है मुझे, जहां तक ये सप्ताह दिख रहा है कि देखिए आप जिस काम में लगे हुए हैं आपके लिए सहायता आने वाली है। अब सहायता आने वाली है, इससे मेरा क्या तात्पर्य है? तो देखिए हम इमेजिन करते हैं सिचुएशन को जहां पर आप अपने बिजनेस कर रहे हैं, जहां एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहां प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं, और पिछले कुछ वीक्स में, कुछ महीने या काफी पुरानी बात पे आपने किसी की कोई हेल्प करी है, तो और वो एलपीओ करता है, तो देखिए इस सप्ताह आपको उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। आप इस सप्ताह देखेंगे कोई ना कोई पुराना काम आपको फलीभूत हो रहा है, वो आपको प्रोडक्टिव रिजल्ट दे रहा है। अच्छा, रेडियंस की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो देखिए इस सप्ताह आपकी अपनी पर्सनालिटी, आपके किए गए काम और आपके किए गए एफर्ट से दूसरे प्रभावित होंगे। तो इस सप्ताह कोई प्रमोशन, कोई रिजल्ट, कोई अच्छा सगा संबंधी या कोई अच्छे संबंध निकल के आने वाले हैं। सप्ताह आपका पॉजिटिव नोट में जाने वाला है। थर्ड कार्ड, Card number 3. Crystals, focus. So your guides are wanting you to really align yourself with your focus. It seems like you have about 3 things that are drawing your attention right now, but where you are in this phase in your life, your guides want you to focus on 1, maybe 2 max, but really get your priorities on this one thing, those things that are urgent and super important for you right now in this time. Now, if something is due next week, I know that you really want to do it because it's your passion, but just remember that it's not an urgent task. So draw your attention back to those things that need to be accomplished right now, and you'll be a lot less stressed. That way you'll be able to embody that beautiful, radiant being that we all know you to be better. थर्ड का इस सप्ताह आपके दिमाग में थोड़ा सा टेंशन होने वाला है। दिमाग में टेंशन से मेरा तात्पर्य यह है कि इस सप्ताह आपका ध्यान भटक सकता है। भटकने से ये बिल्कुल मेरा मीनिंग नहीं है कि आप अपने इस प्रोग्रेस से, आप अपने किसी पैथ से बिल्कुल हट जाएंगे, लेकिन हाँ, हो सकता है आपको 2 या 3 ऑप्शन दिखे जिसमें आपको लगता है कि मैं ये कर लेता तो ज़्यादा बढ़िया होता। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम बात करें, कई बार ऐसा होता है कि मुझे कुछ कोर्स करना है, मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, लगे हाथ मुझे दूसरा बच्चा दिख रहा है या तीसरा कोई स्टूडेंट मेरा दोस्त दिख रहा है, वो कोई और कोर्स कर रहा है, उसकी प्लेसमेंट हो जाती है। या किसी ऑफिस में मैं जो काम कर रहा हूँ वही काम सामने वाला कर रहा है, लेकिन उसकी प्रमोशन हो जाती है, तो मुझे अपने काम के तरीके बदल लेने चाहिए। तो इस तरीके से सप्ताह आपको लगने वाले हैं, कुछ ऑप्शंस दिखने वाले हैं, कुछ ऑल्टरनेटिव्स दिखने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि बिल्कुल ही वेन में जा रहा है सब कुछ, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, या आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल डाइवर्ट अलग ही रूट में है, तो आप सोच सकते हैं। अदरवाइज यहाँ 90% आशंका ये है कि आपके मन में वो ख्याल आने वाला है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, मैं सेकंड या थर्ड ऑप्शन पे चल जाऊं। देखिए, कार्ड बताता है फोकस कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, जो आप काम कर रहे हैं करते रहिए, क्योंकि रिजल्ट आपके पक्ष में तभी आएगा जब आप कंसिस्टेंसी रखेंगे उस काम में, जो कि मुझे पिछले महीने से दिख रही है। तो डिस्टर्ब मत होइए, अपना ध्यान रखिए और इस सप्ताह पॉजिटिव रिजल्ट के लिए थोड़ा सा तैयार रखिए। तो ये है फिलहाल आपके लिए इस सप्ताह कार्ड रीडिंग। That's what we've got for you, Leo. I hope you have a fabulous week, and you know what? We'll see you next time. मिलते हैं नए सप्ताह नए काज के साथ। नमस्ते, बाय। Follow me on Facebook and Instagram for your daily readings. She is so good, she is so good. Hey Virgo, how are you? I hope you're doing fabulously today. It's a brand new week and it's a brand new you. So we've got some cards for you, and well, let's see what's in store for you this week. नमस्कार, हम आए हैं वर्गो कन्या इस सप्ताह आपके लिए कुछ नए कार्ड्स लेकर। आशा करता हूँ पिछला साल आपके लिए पिछला सप्ताह बहुत अच्छा गया होगा। तो निकालते हैं 3 कार्ड्स आपके लिए, 3 कार्ड्स फॉर वर्गो कन्या के लिए। Okay. पता नहीं सप्ताह में क्या है। Let's see what's in your cards. Except it's moving. 3 cards. 3 कार्ड कन्या के लिए। First, second, third. Seems really awesome. पहला कार्ड, first card. Alrighty, Virgo. So the first card that we have coming up is Lake Stillness. I'm seeing like there's a lot of moving pieces to this puzzle right now, but all in all, this machine just it works very effortlessly. It flows together very flawlessly. And your guides are saying that remember that you have this peace within you. It seems like honestly
you have everything that you're working on, and I know that you can keep it organized in your own head, but remember to focus your attention on where it needs to go all at the same time. Now, what I mean by this is your guides are saying that, yeah, the wind is blowing, but that doesn't mean that you have to get out and go fly a kite. What it means is you can notice the wind, you can hear it, you can hear all of the beautiful sounds that come along with it, but that doesn't mean you need to get involved with it. Does that make sense? कन्या, तो ये कार्ड लेक आपका बता रहा है सप्ताह। Okay. Like stillness. स्टिलनेस, गिरना भी एक संकेत है, उठना आपका परिणाम है। तो बात करते हैं हम लेक को लेकर, स्टिलनेस को लेकर। देखिए, इस सप्ताह किसी काम को लेकर स्टिफनेस दिख रही है मुझे। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर डिसीजन को लेकर या प्रोजेक्ट को लेकर थोड़े से कश्मकश में हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, तो उसे मत कीजिए, क्योंकि ये सप्ताह आपको ये बता रहा है कि आपके रिजल्ट अब आपके फेवर में नहीं हो रहे हैं आपके पुरानी किए गए कार्य के कारण। हो सकता है वो पिछला सप्ताह रहा हो या हो सकता है वो पिछले साल का रहा हो, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा इस सप्ताह कि अगर आपके परिणाम आपके पक्ष में नहीं लगते हैं लेकिन वो प्रक्रिया आपके पक्ष में है, देखिए दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं रिजल्ट की बात करता हूं, मैं प्रोसेस की बात करता हूं, तो रिजल्ट आपके पक्ष में हो या ना हो, आप चेंज किसको कर सकते हैं? अपने प्रोसेस को। तो इस सप्ताह यही है कि स्टिलनेस का मतलब ये है कि आप अपने आप को लेकर थोड़े से बिलीफ सिस्टम में आइए। अगर आपको लगता है कि ये चीज मुझसे नहीं हो रही है, छोड़ दीजिए, रिवेल्यूएट कीजिए, उसी प्रोसेस के साथ बढ़ते रहिए, लेकिन प्लीज इस सप्ताह अपने ऊपर बिलीव रखिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर वो बिल्कुल नजर आ रहा है कि आप हारते हुए दिख सकते हैं। सेकेंड Card number 2. We have this Milky Way perspective. So right now you are very, very, very close to the situation. It feels like, honestly, you're really thinking of me. He seems a little bit ungrateful, but your guides want you to get a broader perspective on everything, because there are so many working pieces to this machine, this vision that you have for yourself, and your guides are wanting you to start noticing all the effort everybody else is trying to put in and everything that they're trying to do, even if it's not holding up to your standards in the one piece of your puzzle that they are involved in. कन्या, सेकंड कार्ड अगर मैं कहूँ तो बात करता हूँ मिल्की वे की पर्सपेक्टिव की। तो जैसे पिछले कार्ड में मैंने आपको बताया था, स्टिलनेस वाला आ रहा है कि आपको लग रहा है किसी काम को लेकर आप फिक्स हो चुके हैं, उसे बदलने की जरूरत है, तो देखिए बदल दीजिए, लेकिन प्रोसेस कंटिन्यू रखिए, वो प्रोसेस में होना जरूरी है। तो दूसरा कार्ड मिल्की वे भी बता रहा है पर्सपेक्टिव। देखिए, अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा वापस रिवेल्यूएट कीजिए, ब्रॉड कीजिए, क्योंकि जहां से मैं देख रहा हूं इस सप्ताह आपके पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जहां से आपको मैं पा रहा हूं वहां आप अपने आप को थोड़ा सा कॉन्स्टेंट में ले चुके हैं, आप अपने आप को बाउंड्रीज में ले चुके हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। तो अगर मैं बात करूंगा पर्सपेक्टिव की, तो पर्सपेक्टिव यही है कि अगर आप किसी एक चीज के लिए ट्राई कर रहे हैं तो तैयार रखिए उसकी छोटी छोटी अदर चीजेस के साथ, दूसरी चीजों के साथ भी। तो देखिए कई बार होता क्या है, हम प्रयत्न करते हैं किसी एक ऑब्जेक्टिव के लिए, ए ऑप्शन के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है बहुत हमें ऑल्टरनेटिव अलाइड ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम की बात करूं, आपकी एक बुक है जिसमें 20 चैप्टर हैं, तो आप 20 चैप्टर के बाद आप एक एग्जाम देने जाते हैं, लेकिन काफी सारे आपके टर्म्स एग्जाम होते हैं। तो आप भी लाइफ को ऐसे ही डिवाइड कीजिए, आप अपने गोल्स को भी ऐसे ही देखिए कि कुछ अगर उसमें से हिस्सा मिलता है तो आपका अचीवमेंट है, एफर्ट तो किए हैं ना आपने। तो इस सप्ताह वही है, थोड़ा पर्सपेक्टिव ब्रॉड रख लीजिए, आने वाली चीजों को अच्छे नोट पे एक्सेप्ट कीजिए, ये सप्ताह आपका थोड़ा अच्छा जाने वाला है। Third card. Card number 3, we have is Dawn, New Beginnings, Reverse. So what this is saying is that you've actually started on this path quite a while ago, and I'm feeling maybe 2 or 3 years ago at the most. So your guides are saying that it's time for you to realize that that sun is coming up regardless, but this isn't something that's new for you. And honestly, you have all of these different pieces that are going on right now, and it seems like you're more or less really starting to figure out how everything is flowing together. But trust, in all honesty, that this light is touching every single aspect of whatever it is that you're working on, and your guides want you to know that the light is coming, blessings are coming, and there is so much beautiful magic that's starting to light up around you. Just look for it. पहला कार्ड जैसे स्टिलनेस था, दूसरा पर्सपेक्टिव को लेके था, और तीसरा है न्यू बिगिनिंग्स को लेके। देखिए अगर मैं तीनों कार्ड्स को कंसोलिडेट करता हूं और आपको रिजल्ट बताना चाहूँ,
तो सप्ताह में कुछ ऐसा है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो एक कह रहा है कि आप किसी काम को लेके बहुत स्टिफ से हो गए हैं, तो उस प्रोसेस में वापस उसी प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए, लेकिन अपने थोड़ा जो रिजल्ट है या आपका एक जो ऑब्जेक्टिव है उसको थोड़ा दूसरे पर्सपेक्टिव से देखिए। और जो मैं तीसरा आपका कार्ड रिलेट करना चाहूँ न्यू बिगिनिंग से, तो वो यही है कि जब आप इन चीजों को करके निकलेंगे तो आपको जरूरी है, ये पूरी तरीके से सर्टेन है कि आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाला है। देखिए न्यू बिगिनिंग का मतलब यही है, आप जो करते आ रहे हैं वो रिजल्ट तो है ही। न्यू बिगिनिंग का मतलब है चीजें अब नए तौर पर आपके सामने आने वाली हैं। देखिए हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी नौकरी में जाते हैं, आप एक पूरे प्रोसेस में जाते हैं और पूरे साल भर मेहनत करते हैं और आपको बोनस मिलता है, ठीक है, प्रमोशन मिलता है। लेकिन कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई नौकरी करता 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 आपने एक साइड में एक बिजनेस सेटअप कर लिया, या हो सकता है कुछ नया इन्वेस्टमेंट का तरीका अपना लिया, या हो सकता है आपने अपनी एजुकेशन बढ़ाकर अपने आप को एक नए प्रोफाइल में डाल लिया। तो देखिए ये न्यू बिगिनिंग्स होती है ना। हम रातों दिन परिवर्तन की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल ऑफ अ सडन कल उठेंगे एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, लेकिन हाँ आपके एफर्ट के कारण वो एक चेंज है और आपको एक नया रिजल्ट देने वाला है। तो इस सप्ताह आपके लिए जाते जाते कुछ नया होने वाला है। तो मैं बात करता हूं अगले सप्ताह की, तो अगला सप्ताह फिर मिलेंगे हम इसी 3 कार्ड्स के साथ, न्यू 3 कार्ड्स के साथ सॉरी, और मिलेंगे किम के साथ, मेरे साथ फिर नई रीडिंग पे। I hope you have a fabulous week, and I know TJ does too. But really, we'll see you next time, and trust that everything's going to work out fine. You've got this. ध्यान रखिएगा, आशा करता हूँ आप स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, Thanks. Bye. बाय। Please subscribe to my channel and turn on notifications so you never miss a single video. It's Go on. recording. Hey. हाय नमस्कार, आपका स्वागत है फिर से पॉजिटिवली किम्बरली शो में। मैं आपके साथ लेके आया हूँ तुला के लिए आज फिर से वो 3 कार्ड। आशा करता हूँ पिछला सप्ताह आपके लिए अच्छा रहा होगा, लेकिन जरूरी है देखते हैं इस सप्ताह आपके लिए कार्ड्स में क्या है। तो निकालेंगे 3 कार्ड्स। ये काफी बिजी है कार्ड निकालने में, इसलिए मेरे ऊपर ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल 3 कार्ड्स फॉर यू। Here are 3 cards. There are 3 cards, and it's time for you to pick them out, TJ, my love. 3 cards finally. Hey. Uno, that means 1. Dos, that means 2. 2 Dos, Spanish. हिंदी 2 3। तो ये हैं आपके 3 कार्ड इस सप्ताह के लिए तुला। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। Alrighty. पहला कार्ड। Card number 1 is full moon completion. So I'm seeing that, honestly, I'm feeling like it's a job kind of related thing. Your guides are wanting you to know that you have completed this last phase. Now it's time for you to start moving forward and know that you have all of the knowledge, all of the skills that you need to have developed in order to make it to that next level that you want to go to. And I'm feeling like maybe you should even celebrate the fact that you have come this far, even if it feels like you haven't accomplished anything, you completely have. नमस्कार तुला, आपका ये कार्ड बात करता है फुल मून की और कंप्लीशन की। देखिए जहाँ से मैं सप्ताह देख रहा हूँ, मुझे आपके जो स्टार्स दिख रहे हैं और जो फीलिंग आ रही है वो ये आ रही है कि अब फिलहाल अगर मैं पिछले आपके एफर्ट्स को लेकर कहूँ तो अब वो फल आपको मिलने वाला है इस सप्ताह। कोई नई न्यूज़ आ सकती है आपके प्रमोशन को लेकर, कोई नई न्यूज़ आ सकती है आपके एग्जाम के परिणाम को लेकर, कोई नई न्यूज़ आ सकती है जॉब ओपनिंग को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, आपके पुराने रिश्तों के पैचअप को लेकर। तो कुछ ना कुछ एक अच्छा होने वाला है, और वो अच्छा इसलिए नहीं हो रहा है कि उसे होना है। देखिए आपने एफर्ट किए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हो सकता है आपको पता भी नहीं हो, लेकिन आप कुछ ना कुछ आप उस पर कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उसके अंदर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, शुरुआत बहुत अच्छी है। सेकंड कार्ड, Card number 2. Crystals, focus. So I love this card. It's like this crystal cave, and this is telling you that it's time for you to really start focusing on those things that you want in this life. I'm feeling like you're really creating and developing this whole role for yourself, and it's time for you to figure out what exactly you want and focus on that vision and focus on that dream, and don't let anybody else steer you away from it. And I know that times make it rough, but all in all, your guides are saying it's time for you to do you, sweetie.
तुला पिछला कार्ड जैसे कि आपको बताता था कंप्लीशन के लिए, ये कार्ड बता रहा है फोकस के लिए। देखिए बहुत अच्छा है, सप्ताह आपके लिए शुरुआत बहुत अच्छी है। मैं कहूंगा अगर मैं पिछले कुछ कार्ड्स में बात करूं तो आपका सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि कार्ड की शुरुआत बात हुई है कंप्लीशन से। कंप्लीशन मतलब पूर्ति, पूर्ण। सेकंड कार्ड की बात करता हूं फोकस। तो देखिए कुछ भी पुराना एफर्ट आपके लिए रिजल्ट लेके आने वाला है, लेकिन जरूरत है यहाँ पर वापस अपने आप को रिफोकस करने की, फोकस करने की। फोकस में कहूंगा कि अगर आपके लिए कोई चीज पूर्ण रूप से मिल रही है, अब आप बात करिए दूसरी चीज की। जैसे अगर मैं बात करूं एक प्रमोशन की, आपको एक जॉब मिला, उसमें प्रमोट हुए, एक नई डेजिग्नेशन, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आए, तो ये आपको उस पोजीशन के लिए तैयार नहीं कर रहा है, ये आपको तैयार कर रहा है दूसरी एक नई पोजीशन के लिए जो उससे बेहतर होने वाली है। तो यहां फोकस का मतलब यही है कि अगर कोई आपके पास परिणाम आ रहा है तो उस परिणाम में खुश होइए, बट उसमें अपने आप को पाउंड मत कीजिए, क्योंकि अब आपके लिए एक नई सफलता आने वाली है, एक नई ऊंचाई छूने वाली है। तो फोकस कीजिए वापस से अपनी एबिलिटीज पे, अपने प्रोग्रेस पर, अपने प्रोसेस चार्ट पर। थर्ड कार्ड Number 3. Waterfall effortless reversed. So a lot of times whenever things are aligned, they're completely effortless. It has just flow for us and you don't really have to put in much effort, but this isn't the case right now. What you're wanting to do, it seems like it's going to be much harder to break into, but trust me when I say it's completely worth it. So your guides want you to know that yes, you're going to have to put in a lot of effort. You're going to have to put in some time. You're going to have to put in some energy, but all in all, aren't your dreams worth the time and energy that you devote to them? I think so, especially if you know for sure that's what you want to do the rest of your life. तुला पिछले दो कार्ड्स में जैसा कि आपके लिए सप्ताह बहुत अच्छा रहा है पॉजिटिव नोट पे, तो वाटरफॉल आपके लिए कुछ मिला जुला सा ही आपके लिए परिणाम लाने वाला है। तो अगर मैं बात करूं इस वाटरफॉल के लिए, देखिए एफर्टलेस और इस वाटरफॉल की प्रगति को देखिए। तो देखिए एफर्टलेस कहने से मतलब है मेरा कि अगर आप किसी कार्यक्रम को कर रहे हैं, किसी प्रोसेस में है, जैसे कि पिछले कुछ कार्ड में बताया जा रहा है, इस सप्ताह आपको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। देखिए एफर्ट करते जाइए, क्योंकि देखिए कर्मा तो आपको करना ही है, परिणाम आपके हाथ में नहीं है। मैं बार बार वही कह रहा हूं, लोग कहते हैं कि हम इस परिणाम के लिए, ऑप्शन के लिए काम कर रहे हैं, हम बी रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं। देखिए रिजल्ट आपका एक केंद्र हो सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूं उस केंद्र की, तो उसके आसपास सराउंडिंग तय करेगी कि वो गोला कितना बड़ा होने वाला है। तो जैसे आपकी यही इस तरीके से आपका एफर्ट है, वो एफर्ट तय करेंगे कि आप कितना समेट रहे हैं या फिर आप कितना छोड़ रहे हैं। तो यहाँ एफर्टलेस की बात वही हो रही है कि इस सप्ताह आपको निश्चिंत रहना है, सप्ताह बहुत अच्छा है, अपने काम को करते जाइए, प्रोसेस में लगे रहिए। और हाँ, अगर आप किसी प्रोसेस को कर रहे हैं तो अपना पूरा 100% दीजिए, डाइवर्ट मत होइए। सप्ताह आपका बहुत बहुत अच्छा जाने वाला है। तो ये थे आपके 3 कार्ड्स। That's what we've got for you, Libra. I hope you have a great day and we'll see you next week. आशा करता हूं आपका सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। मिलते हैं फिर नए सप्ताह नए कार्ड्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। Anyone? Thanks, bye. Follow me on Instagram for your daily affirmation and spirit guided message. And I'm with you. हाय, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका पॉजिटिवली किम्बरली शो में। काफी खुश है। फिर से स्वागत है आपका पॉजिटिवली किम्बरली शो में। बात करते हैं सप्ताह की रीडिंग्स की वृश्चिक के लिए। Hey, how's it going? My name is Kimberly. This is TJ. We've got some cards for you for this upcoming week, dear Scorpio. So, TJ, will you do the honors of picking out our cards? Sure. तो निकालेंगे 3 कार्ड वृश्चिक के लिए इस सप्ताह। Sorry. It was too excited. Right. Second. And third. And number 3. इस सप्ताह वृश्चिक आपके लिए 3 कार्ड। I'm so bored. No. Alright, card number 1 we have is Milky Way perspective. Now your guides are saying that right now in this moment you're really close to the situation, and honestly I'm feeling like the word emotional is you're getting really emotionally attached to the outcome, but your guides don't want that. See, the thing is, whatever you have, what can change, right? Change is the only constant in this entire universe. And what your guides are wanting you to do is detach yourself with the emotions of what's going on, because it seems like they're really sucking you in and you're feeling hurt and you're feeling like someone's done you wrong, but that's not the case. That's not the case at all. They're really just acting within their own
element, to say the least. Now, what this is saying for you is time to back up so you can gain a broader perspective. If this was meant to be, trust the universe would have it be, but it doesn't seem like that's the case at all. It's not. So allow it to leave and trust that you're going to get better. वृश्चिक, इस सप्ताह की अगर रीडिंग की बात करते हैं तो पहला कार्ड आपका आता है मिल्की वे पर्सपेक्टिव को लेके। देखिए यहाँ से पर्सपेक्टिव बड़ा करने की जरूरत है, चीजों को बड़े आईने में देखने की जरूरत है, चीज को बड़े धरातल में देखने की जरूरत है। देखिए हो सकता है आपका गोल आपके लिए बहुत मैटर करता हो सकता है आपने जो सोचा है वो आपके लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन देखिए यहाँ अगर मैं बात करूँ पर्सपेक्टिव की तो आपको उससे रिलेटेड बहुत छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो एक बड़ा एग्जाम है, सपोज आपका एनुअल है या फिर आपका कोई गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है या स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है या उससे रिलेटेड कुछ भी है, एक प्रमोशन भी हो सकता है, एक वीपी बनने तक का भी एक जरिया हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो छोटे छोटे स्टेप्स है उसका भी ध्यान रख लीजिए। देखिए आपका जो, अगर मैं चार्ट की बात करूं, आपके जो प्रोग्रेस चार्ट की बात करूं, उसको आपको इस तरीके से देखना है कि ये आपका पेरेंट ग्रुप है और इसके नीचे सब्सिडरी है, तो ये जो सब्सिडरी है ये आपका ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। तो आपको अपने रिजल्ट को जिस तरीके से देखना है कि छोटी छोटी चीजें कलेक्ट करी, आपको आपकी बड़ी चीज मिलने वाली है। तो सप्ताह छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना है, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है। इस सप्ताह आपके पास काफी अच्छा समय आने वाला है। Second card. Card number 2. Woo! We have this island solitude. Now, this is something that I'm really feeling like you need to do on your own. A lot of times whenever we're on our own, sometimes I can feel really lonely. And I'm feeling like that's really what you're scared of at this time, is being alone. But honestly, if you use this time to your advantage, instead of craving other people in your life, really get to know that beautiful person that's there on the inside of you. That way, no matter what happens, you can be confident that you are exactly where you need to be and you're making all the right decisions for yourself. That's really the ultimate goal here in getting to know who you are and getting to know what you want. वृश्चिक, जैसे कि मैं पिछले कार्ड में मैंने आपको कहा कि पर्सपेक्टिव का ध्यान रख लीजिए, थोड़ा बड़ा पर्सपेक्टिव लीजिए। यहाँ बात करते हैं सॉलिट्यूड की। देखिए कार्ड के अंदर क्या है, बिल्कुल एक आइसोलेशन सा है, बिल्कुल अकेला सा एक स्पेस है सबसे दूर। तो ये आपके लिए ये शो कर रहा है कि इस सप्ताह अगर आप कहीं पे भी फंस रहे हैं या आपको थोड़ा सा शक अपने ऊपर लग रहा है या किसी प्रोग्रेस को लेकर या किसी ऑब्जेक्टिव को लेकर, अपने किसी एम को लेकर बार बार क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो देखिए रुक जाइए, अपने को वापस एक बार से रिवैल्यूएट कीजिए, खुद को समय तो दीजिए। देखिए अगर आप लगातार काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं किसी प्रोग्रेस के लिए, लड़ रहे हैं किसी एम के लिए, तो जरूरी कुछ सेकंड, कुछ मिनट, कुछ दिन खुद के लिए भी जरूरी है, क्योंकि देखिए ये एक बिल्डिंग प्रोसेस है। आपका अगर एम बन रहा है तो वो एक दिन में नहीं मिल रहा कि मैं आज कुछ कर रहा हूं कल मुझे मिलेगा, एक्सेप्ट कुछ चीजों को लेकर। तो देखिए बिल्डिंग प्रोसेस है, समय देना पड़ेगा, खुद को मत भूलिए। तो सॉलिट्यूड ये शो करता है कि सप्ताह आपको एक मौका खुद के लिए भी ढूंढना है जहां आप अपने ऊपर बिलीव कर पाए वापस और वापस अपनी चीजों को रिकलेक्ट करें। तो यहां से मैं देखता हूं सप्ताह आपके लिए एक दिन या 2 दिन ऐसे आने वाले हैं जहां थोड़ा सा आपको डाउन सा फील होने वाला है, बट निश्चित रहिए सप्ताह आपके लिए अच्छा ही रिजल्ट लेकर आएगा। थर्ड कार्ड, Card number 3. We have this lake stillness reversed. Now what this is saying is, yeah, sometimes the world is chaotic. But in all honesty, it seems like that piece of you that's getting wrapped up in all of these emotions, and it's getting wrapped up in all of the little pieces of drama that's going on, is really your guide's way of saying that you are resisting peace within your own self. Let me say that one more time. You are resisting peace within your own self. If you were able to really look at the whole situation from that broader perspective, from how you needed to be, and enjoy this time in solitude like you needed to, it would be okay for you to have this peace and you would come naturally. But in all actuality, right now in this moment, you're just everywhere with your words, with your actions, and your guides are saying it's time for you to chill out, stop fighting your own flow, and allow yourself to have the peace that you crave on the inside. वृश्चिक, पिछले 2 कार्ड और ये तीसरा कार्ड टेक स्टिलनेस बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं।
देखिए क्लियर ये शो हो रहा है कि पिछले कुछ समय से आपने खुद को रोक रखा है। आप रुकना चाहते हैं, आप बैठना चाहते हैं, आप अपने आप को वापस से रीएवेल्युएट करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं और अपनी चीजों को नए तौर पे प्रोसेस में लाना भी चाहते हैं, लेकिन आप डर रहे हैं। साफ साफ एक कार्ड से क्लियर हो रहा है स्टिलनेस, कि आपने उस चीज को जहां जैसे तैसे वो सेट हुआ है, बस आपने उसको छोड़ दिया है और आप आगे बढ़ गए। देखिए चीजों को घुमा फिरा कर अगर मैं बात ना करूं तो एक सिंपल सा मैं एक स्ट्रेट लाइन कहूं कि देखिए आप अपने आप को बंद कर रखे हैं। आप नहीं चाह रहे कुछ परिवर्तन को, आप नहीं चाह रहे किसी चेंज को। देखिए अगर कुछ नया एडमिशन है, कुछ नई प्रोग्रेस है, कुछ नया कोर्स है, कोई नया रिलेशन है, कोई नई जॉब प्रोफाइल है, ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए चेंजिंग हो सकता है। इस सप्ताह आपको चेंज दिख रहा है, नहीं तो फिर बात वही पुरानी आ जाएगी। आप इन्हीं चीजों को लेकर घूमते रहेंगे तो वो सप्ताह दर सप्ताह, सालों साल वही समस्या आपके लिए बने रहेगी। तो मैं वापस अपनी लाइन को दोहराता हूं, देखिए अपने आप को ओपन कीजिए, स्टिलनेस को थोड़ा सा खोलिए। इस सप्ताह आपको कहीं ना कहीं बाउंड्रीज दिखने वाली हैं। तो ये रहे आपके 3 कार्ड। मैं आशा करता हूँ अपना ध्यान रखेंगे और थोड़ा सा इन चीजों पे गौर करेंगे और खुद को ओपन करेंगे चीजों को लेकर। मिलते हैं फिर नए कार्ड्स के साथ नेक्स्ट सप्ताह टीजे और किम्बर्ली के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। That's what we've got for you right now, dear Scorpio. I hope you have a great week, and remember, it's all gonna be okay. धन्यवाद। See you later. नमस्कार। बाय। Bye. Follow me on Facebook for your opportunity to have your questions answered every day. नमस्ते, स्वागत है आपका पॉजिटिवली किम्बर्ली शो में। हम फिर लाए हैं आपके लिए नए कार्ड्स। इस सप्ताह चालू करते हैं धनु के साथ। तो धनु के लिए हम इस सप्ताह निकालेंगे कोई भी 3 कार्ड्स। 3 cards for Les Sagittarius. So, will you do the honors, my dearest TJ, and pick 3 cards for us? Well, what do we have? So honor, What do we have? so respect today. Yeah. That's a good card, yeah? First, second. Pick the right one now. Their week depends on it. Three. All right. इस सप्ताह आपके लिए 3 कार्ड। Alrighty, so card number 1 for you, dear Sagittarius, we have is a train. Life is just like a train. You need to be consistent every time, whatever is happening around you. Like So this is Green Man Synergy reversed. Now all this is saying is that you need to keep on going, and it doesn't necessarily mean that things are going to flow very easily for you, but trust at the same time that things are starting, they're stopping, and just because things aren't going smoothly doesn't mean they're not going the way they need to go. Remember, in every single misfortune, there's going to be a lesson there for you, and your guides want you to know that you are growing, you are developing in such beautiful ways, and they want you to know honestly that it's okay if things don't go exactly the way you want them to. Just keep that head up, okay? धनु नमस्कार। बात करते हैं सप्ताह आपके कार्ड को लेकर, ग्रीन मैन सिनर्जी को लेकर। देखिए सप्ताह आपके लिए अच्छा स्टार्ट है। बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इस सप्ताह आपको वही मौके वापस मिलने वाले हैं जो पिछले कुछ सप्ताह में आप मिस कर गए थे। देखिए यहाँ अगर मैं ध्यान से देखूं, ये सप्ताह मुझे आपके लिए थोड़ा सा अपॉर्चुनिटिस्टिक बट थोड़ा सा एफर्ट मेकिंग भी दिख रहा है। देखिए काम आपको करना पड़ेगा, एफर्ट थोड़ा लगाना पड़ेगा, आपको रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं, क्योंकि ये सप्ताह आपके लिए बता रहा है कि आपके लिए ये सप्ताह थोड़ा सा काम वाला, और मैं कहूँ कि थोड़ा सा प्रोडक्टिव भी है, लेकिन साथ में आपके लिए थोड़ा सा बिजी भी रहने वाला है। तो देखिए अगर आपने कोई गोल बना रखा है, कोई ऑब्जेक्टिव है आपका, कोई सप्ताह की कोई आपकी एक रिजोल्यूशन है, तो वो मिलेगा, लेकिन आपके लिए उसको पूरा कार्य करना पड़ेगा, उसके लिए पूरा प्रोग्रेस एक प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा जिसपे आप चलते रहे। एक प्लान आपके लिए इस सप्ताह जरूरी है। ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा बिजी रहने वाला है, खुद को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
सेकंड कार्ड। Exactly. Card number 2, we have this lake, stillness. Now, your guides are wanting you to find this place of stillness and peace within you, so no matter what happens in the entire world, no matter if things don't go the way you plan for them to, no matter what, if they're blessings in disguise, if they're misfortunes, whatever the case may be, you'll be okay. Trust that. Because honestly, there's this beautiful place within every single one of us where no matter what happens in this outside world, this chaotic world that we all live in, it doesn't have to affect you. It doesn't have to affect you. Remember that. You can still be at peace. You can still be still. दूसरा कार्ड जहाँ तक मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है, अगर मैं पिछले कार्ड को कनेक्ट करना चाहूँ, कोऑर्डिनेट करना चाहूँ पिछले कार्ड से, तो पिछला कार्ड जहाँ आपको बता रहा है आपकी सिनर्जी के लिए, जहाँ मैं आपसे बात कर रहा था अपने कुछ आपके एफर्ट को लेके, या स्टिलनेस भी वही चीज़ क्लियर करे। देखिए, किसी काम को लेके स्टफ मत होइए, क्योंकि ये सप्ताह ये बता रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेके, किसी प्रोसेस को लेकर, या आपके किसी निर्णय को लेकर आप बहुत ज़्यादा रिजिड हैं। देखिए, मैं अगर रिजिड की परिभाषा में आपको बताना चाहूँ तो वो बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव में हो सकता है, लेकिन आप कनेक्ट कीजिए अपने किसी पिछले काम से, या पिछले सप्ताह या पिछले साल या कुछ सालों में आए हुए कुछ रिजल्ट से कनेक्ट कीजिए। वो आपको सप्ताह वापस मिलने वाले हैं, वो कनेक्शन मिलने वाला है। हो सकता है पिछली कंपनी से आया हुआ ऑफर लेटर अभी की ज़रूरत हो, या पिछले लोन के लिए आपको क्रेडिट स्कोर या बिल नहीं चुकाया आपके लिए। बहुत बहुत फनी सी चीज़ है, लेकिन हाँ, आपके लिए वो कनेक्शन मिलने वाला है। ये स्टिलनेस ये क्लियर कर रहा है कि देखिए, चीजों को अडॉप्ट कीजिए, अपने आप को उस चीज पे बाउंड्री पे मत ब्लॉक कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा ओपन कीजिए। यहाँ आपका कार्ड यही शो कर रहा है कि पिछली कुछ चीजें जो कंसिस्टेंट चली आ रही हैं वो आपको रोक रही हैं, और आप उसे वैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसे वो चली आ रही है। इस सप्ताह आपको मौका मिलने वाला है थोड़ा सा चेंज लाने का, तो ध्यान रखिएगा। चीजों को नए पर्सपेक्टिव में देखिए, चीजों को नए तरीके से देखिए, और अपने आप को ओपन रखिए चेंज को लेकर। थर्ड कार्ड What we have is autumnal equinox release reversed. So, all in all, with everything else that's going on, your guides are saying that you're trying to hold on to something, and it feels like you're trying to hold on to something tangible, something that honestly you feel like you have to hold on to it because it's the only thing that you know for sure. I don't know if this is an old way of thinking or if it's an actual something that is physical that you feel like you absolutely have to hold on to. But all in all, your guides are saying that it's best for you to let go, especially in this case, because like we said, with the synergy and the stillness, the only way you're going to get this piece is to change a little bit, and that tangible, that thing you're holding on to is really just setting you back in your old ways. And I'm really feeling like you know what I'm talking about, even if you're fighting it. Honestly, if you don't know it in this exact moment, you're going to realize when you're going to think of it within the next 24 hours. And that's just going to click for you. धनो, मैं तीसरे कार्ड की बात करूं तो यहाँ पर वही चीज़ें निकल के आ रही हैं कि ये कार्ड भी पिछले 3 कार्ड के साथ ही कनेक्ट हो रहा है कि सिनर्जी और स्टिलनेस की बात करूं। देखिए, यहाँ पर भी आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। सप्ताह खुद को बांधिए मत, क्योंकि जहां तक मुझे फील आ रहा, बार बार मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीज है इस सप्ताह जो आपको पिछली चीजों से रिलेट कर रही है। कुछ भी कारण हो सकता है। देखिए, वो पर्टिकुलर किसी एक जगह से फिक्स नहीं है। वो आप स्टूडेंट है तो आपकी पढ़ाई से रिलेट हो सकता है, अगर नौकरी पेशा है तो नौकरी से रिलेट हो सकता है, आपकी पैसे की समस्या हो सकती है, रिलेशन को लेकर हो सकता है, या छोटी मोटी कोई भी बड़ी चीज़ों से रिलेट भी कर सकती हैं। छोटी चीज़ बड़ी से भी रिलेट कर सकती है। तो इस सप्ताह अगर मैं पूर्ण रूप से कहना चाहूँ तीनों कार्ड को, सप्ताह आपको एक मौका मिल सकता है जहां आप पुरानी चीजों से कोप अप करने की जरूरत महसूस होने लगे। थोड़ा सा चीजों को छोड़ना सीखिए, होल्ड ऑन मत कीजिए, लेट गो पे विश्वास रखिए कि अगर कोई चीज आपको पेन दे रही है, कोई आपके लिए लगातार एक मेंटल एग्जॉशन बनी हुई है, तो उसको करना क्या है आगे ले जाकर। देखिए, सप्ताह को अच्छे नोट में खत्म करना आपके हाथ में ही है। कार्ड्स ये साफ साफ शो कर रहे हैं कि आपकी मानसिक स्थिति अभी बहुत स्टिफ है, आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जो चीज चल रही है उसको लेते हुए आगे चल रहे हैं उस बर्डन को। मैं चाहूंगा इस सप्ताह आपका वो मौका, जब भी आपको लगे कि चीजों को मुझे छोड़ना है, रिवैल्यूएट करनी है, वापस चीजों को मुझे देखना पड़ेगा, नए तौर से आगे जाना है,
वहीं आप पकड़ लीजिए, वहीं इस चीज को थोड़ा सा लेट गो कर दीजिए, अपने आप को थोड़ा सा पीस दीजिए, काम माइंड से सोचिए, क्योंकि इस सप्ताह आपको परिणाम तभी मिलेगा जब आप इन चीजों को छोड़कर आगे आएंगे, उन चीजों को छोड़कर आगे की तरफ देखेंगे। अपना सप्ताह अच्छा रखिए, अच्छा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ये थी आपकी 3 कार्ड्स की रीडिंग। आशा करता हूं आपका सप्ताह अच्छा जाएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और प्लीज चेंज को एक्सेप्ट करना सीखिए। Hope you have a great week. And you know what? We'll see you next time. Bye. नमस्कार, धन्यवाद। Dhanyawad. Please subscribe to my channel and turn on notifications so you never miss a single video. नमस्कार। इस सप्ताह फिर स्वागत है आपका पॉजिटिवली किम्बरली ज़ोडिएक रीडिंग में। मैं टीजे किम के साथ आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ पिछला सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। हम बात करेंगे मकर की, तो देखते हैं इस सप्ताह आपके लिए 3 कार्ड्स में क्या लेकर आया है। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न की। Alrighty, Capricorn, we got some cards for you. Let's see what they are. Let's see what they are. Go on, hold on. पहला, दूसरा, Ooh, come on, one more. Let's see what's going on here. तीसरा। हम बात करेंगे 3 कार्ड्स की कैप्रिकॉर्न। तीसरा। 3 cards for you. First card we have is Rainbow Blessings. So your guides want you to know that everything that you're working towards right now is paying off. Even if you don't see it in this immediate future, but I'm feeling like things are really starting to flow in for you. So make sure you're open to receiving those blessings in your life. Your guides are saying there's a rainbow every single place you look. You just have to notice the magic in your everyday life, honestly. And with that being said, these blessings are just going to start, they're just going to start flowing into you in the way that you've really been asking for, but perhaps you haven't accepted before. मकर, सप्ताह की शुरुआत बहुत शानदार होने वाली है। ब्लेसिंग्स का ये कार्ड आपको क्लियर कर रहा है कि देखिए सप्ताह की शुरुआत आपके अच्छे नोट पर होने वाली है। कुछ भी आपके पुराने किए गए एफर्ट्स के कारण आपको परिणाम मिलने वाला है, और ये परिणाम सप्ताह की शुरुआत में ही मिलेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सैटरडे तक मिलेगा, फ्राइडे तक मिलेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी अच्छी चीज, हैप्पी गोवा सिचुएशन आने वाली है आपके लिए, जिसमें आपको मैं अगर देखता हूं तो वेडनेसडे तक कुछ एक अच्छी खबर मिलने वाली है। तो आशा करता हूं कि ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। देखिए अच्छे नोट पे भी देखिएगा इसको, बड़े परिवर्तन के तौर पे नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ छोटे छोटे आपके परिवर्तन दिखने वाले हैं, और वो परिवर्तन आपके बड़े परिवर्तन को ही बनाते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस सप्ताह आपको अपने पर विश्वास रखना है, लेकिन ये सप्ताह बहुत शानदार स्टार्ट के साथ चालू हो रहा है। सेकंड कार्ड, Card number 2 coming through. What we have for you is full moon completion. So with these blessings that are coming inevitably to you, your guides are saying in this moment you are full, you complete, and this entire week is a week that you can really celebrate all the accomplishments that you've already gone through, everything that you've accomplished up until this point, because you have been acting and growing miraculously, and I mean miraculously now. So your guides are wanting you to notice and accept the fact that yes, you have done so much to be in this place right here, right now, and it's about time that you celebrate and acknowledge all of the development ways that are all the ways you've developed. मकर, जैसे कि मैंने पिछले कार्ड में आपको बताया था कि पिछले कार्ड में भी यही बात आई है आपके साथ ब्लेसिंग्स को लेकर, तो इस सप्ताह की शुरुआत बहुत शानदार है, क्योंकि सेकंड कार्ड भी आपको बता रहा है कंप्लीशन को लेकर। देखिए मैंने जैसा पिछले कार्ड में कहा आपके एफर्ट्स आपको फलीभूत होने वाले हैं, तो कंप्लीशन यही कह रहा है कि देखिए वो समय आ गया है जो आपने बहुत मेहनत करी थी जिस काम के लिए, वो एक शुभ घड़ी आने वाली है, जिसे मैं कहूँ एक शुभ परिणाम मिलने वाला है। तो इस सप्ताह ये पूरी चांसेस है कि आपके पास कुछ एक अच्छी न्यूज आने वाली है। वो न्यूज किसी भी तौर पे रिलेट हो सकती है, पढ़ाई लिखाई, आपकी कमाई, आपके रिलेशन को लेकर लो भाई, तो सॉरी फॉर द फन, लेकिन वो एक अच्छे तौर पे ये सप्ताह आपके लिए आने वाला है। तो कंप्लीशन के लिए मैं ये कहूंगा कि तैयार रहिए इस सप्ताह में कुछ अच्छी न्यूज सुनने के लिए, और कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा अगर कुछ भी आपके साथ इस सप्ताह अच्छा होने वाला है। What happened? Sorry. The good news makes everyone perfect. So बात करते हैं थर्ड कार्ड की। Card number 3 we have is Cave Sanctuary. So this is a place for you to be truly yourself
And I'm feeling like you haven't been able to find that place in your physical world. You don't have a place where you can go and feel comfortable. But in all honesty, you can create this place, not only within yourself, but within your physical world too. So if you have just a corner of your house or a little closet or something that you can make truly a place of your own, a place where you can feel comfortable, maybe a place that you can lock up that kids can't get into. No matter what it is, your guides are saying that this is vital for your growth and development. They want to make sure that you feel safe in your own surroundings, and right now it feels like honestly you're a little uneasy, but that's okay because you still have these blessings and you're still full and complete just as you are. But being able to open up and be more authentic and more who you are, I feel like is vital for you at this point. सप्ताह का थर्ड कार्ड है केव। देखिए, ये सप्ताह आपके पास कंप्लीशन है, आपके पास रिजल्ट है, ब्लेसिंग्स हैं। सप्ताह के लास्ट में मुझे देखने को मिल रहा है कि एक समय सप्ताह के अंत आते आते आपको खुद पे ध्यान देना है। देखिए, सेलिब्रेशन इज गुड थिंग, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम चीज़ें खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन यहाँ रुकने की ये भी ज़रूरत होती है कि देखिए हम ए पॉइंट को गेन कर चुके हैं, हमें एक ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि हम आपको अपने आप को इस बाउंड्री में रख लेंगे। तो इस सप्ताह बस ये ध्यान रखना है, अपने आप को सीमित मत कीजिएगा उस खुशी के अंदर, क्योंकि देखिए सप्ताह में चांसेस हैं कि आप इसी में खुश होकर रहेंगे तो शायद आप अगली चीजों को ना करें। बहुत अच्छा है अगर आप पे बिलीव करते हैं और आप दूसरे काम में लग जाते हैं, लेकिन थर्ड कार्ड आपको ये बता रहा है कि रुकिए, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, वापस रिवैल्यूएट कीजिए, क्योंकि देखिए नई रेस है, नई घोड़ा, वापस आपको एक नई शुरुआत करनी है नए सप्ताह की। तो इस सप्ताह यही है, ध्यान रखिए इस कार्ड को लेकर, अपने ऊपर ध्यान रखिएगा। अगर मैं तीनों कार्डों को कंसोलिडेट करना चाहूं तो ब्लेसिंग है, सप्ताह की शुरुआत बहुत शानदार है। दूसरे कार्ड की बात करूं तो बात करता है कंप्लीशन की, जिसमें आपके किसी काम के होने का परिणाम की आशा हो रही है और बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। और तीसरा बात करता है खुद को समय दीजिए, क्योंकि आगे बड़ी आपके पास उपलब्धियां बहुत ज्यादा आने वाली है। तो ये थे तीन कार्ड पॉजिटिव किम्बर्ली में। हम आशा करते हैं आप अपना ध्यान रखेंगे, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और एंजॉय करेंगे इस सप्ताह को। हम मिलेंगे आपके साथ नए सप्ताह पर नए कार्ड्स के साथ। Hope you have a fabulous week and we will be here to see you next time. तब तक धन्यवाद। Namaste. Bye. Follow me on Facebook for your opportunity to have your questions answered every day. Aquarius, hope you're doing fabulously today. My name is Kim, this is TJ, as you might know already. So we've got some cards for you for this upcoming week. We've got 3 to be exact. नमस्कार, आपका स्वागत है पॉजिटिव किम्बर्ली शो पर। मैं हूं टीजे और ये है किम। हम बात करेंगे आज कुंभ की। तो आशा करता हूं पिछला सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, स्वस्थ होंगे आप, अपना ध्यान रखेंगे। इस सप्ताह हम निकालेंगे आपके लिए 3 कार्ड, देखते हैं आपके लिए इन 3 कार्ड्स में क्या है इस सप्ताह के लिए। बात करते हैं कुंभ के लिए। Will you do the honors of pulling some cards? जी बिल्कुल। 3 cards. 3 cards. First, so serious. 2. Down. 3. 3. We got 3 cards right here. कुंभ, आपके लिए सप्ताह के 3 कार्ड। 1, First, 2, 3. There we go. So, yeah, that's right. Okay. Perfect. Okay, card number 1 we have is Dreamtime Creation. Now, I want you to realize how your dreams, and not necessarily the dreams that you have in your sleep, but your dreams that you have for your life and the way it's going, how they affect who you are. Now, remember, it's easy to turn a dream into a goal, into a plan. Now, it seems like you've kind of steered off of the ways of your dream a little bit, like you've put them on the back burner. And I'm feeling like you've really not gone so far into your dreams because you're coming up with excuse after excuse, and that's kind of sad, honestly, because your guides want you to know that your dreams are there for you for a reason. Now, even if it's something that you can't make money off of right away, you shouldn't put it on the back burner, love. You have been given this talent, you've been given this gift, and it's about time for you to even start
putting it into play, even if you can't monetize it just yet. Cool. पहला कार्ड मैं बात करता हूँ तो यहाँ से मुझे दिख रहा है क्रिएशन की। देखिए इस सप्ताह आपको चीज़ों को थोड़ा सा प्लान करके चलना है, क्योंकि जहाँ से मैं देखता हूँ थोड़ा सा चीज़ों को लेकर गड़बड़ यही हो रही है कि अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है और किसी चीज़ में हम सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपने प्लानिंग्स को एक नए रूप में लाइए, अपने प्रोसेस को नए रूप में लाइए। अगर वो प्रोसेस काम नहीं कर रहा है, आप एफर्ट अगर पूरे डाल रहे हैं, देखिए मैं आपको 3 पॉइंट्स क्लियर यहाँ समझा रहा हूँ। 3 पे आप ध्यान दीजिएगा, इस सप्ताह आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेके आएगा और नई चीजें नई रूप में आ सकती हैं। देखिए ध्यान रखिएगा 3 C's को लेकर। पहला सी अगर मैं बात करूं आपके कमिटमेंट को लेकर, देखिए किसी काम को आप कर रहे हैं पूरी तरीके से कमिटेड होइए। ओके, ये नहीं कि अगर आपको दूसरा ऑप्शन दिख रहा है और वहां अगर बेटर अपॉर्चुनिटीज दिख रही है और बेटर रिजल्ट दिख रहे हैं तो आप यहां पूरा एफर्ट नहीं लगा रहे, आप हाफ एफर्ट कर रहे हैं। देखिए ये आपको कभी भी फलीभूत नहीं होने वाला। तो पहला ध्यान रखिएगा आप कमिटमेंट को लेकर। दूसरा जरूरी है कंसिस्टेंस। देखिए अगर 7 दिन है, महीने हैं, लगातार रखिए काम में। आपको अगर वो काम आपसे 24 घंटे मांग रहा है तो आप उसमें 24 घंटे देने की कोशिश कीजिए। अगर वो मांग रहा है कि आपसे 10, 15, 20 दिन लगातार आपको काम करना है, लगातार एफर्ट देने हैं, तो उसमें आप कमी मत रखिए। देखिए कंसिस्टेंसी है जो आपके रिजल्ट को बेटर बनाती है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा फिनिश करती है। और तीसरा अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन की, देखिए अगर पहला कमिटमेंट, दूसरा आपका कंसिस्टेंसी और तीसरा बात करूं कम्युनिकेशन को, तो कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? देखिए कम्युनिकेशन या किसी पर्सन से नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कम्युनिकेशन आपके एम से, आपके ऑब्जेक्टिव से। तो जो आप कर रहे हैं और आपका जो एम है, देखिए कम्युनिकेशन बनाए रखिए। कहने का मेरा मतलब है रिचेक कीजिए, एम आई डूइंग रॉन्ग, एम आई डूइंग राइट। तो ये कम्युनिकेशन जब तक बना रहेगा तो आप लगातार उस रेस में बने रहेंगे। देखिए जैसे कि हम मैराथन होता है, तो आप जहां से चालू करते हैं आप वहीं आके खत्म कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होता है। तो हम क्या ध्यान रखते हैं कि हमको उस पॉइंट तक पहुंचना है, तो हम कंसिस्टेंट रहते हैं उस रनवे पे। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन बनाए रखना है। तो इस सप्ताह आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेके आ सकता है। सेकंड कार्ड Number 2. What we have is childhood innocence reversed. Now, this seems like the word adulting is kind of taking over your everyday life right now, and I'm feeling like it's getting really kind of boring for you. Now, all this means is you've kind of gotten stuck in this routine. And as adults, we get in these habits of doing whatever we want to do in a certain particular way. You always take the exact same route to work. You always do your job in the exact same kind of way. And your guides are wanting you to know that honestly, it's time for you to break that routine. There's so much fun in this world. There's so much fun in your life in general. And it's about time that you remember how to have fun in your everyday life, whether that means having some dance time to yourself or cracking a joke with someone at work. Whatever that case is, your guides are wanting you to get back into that playful vibe that you used to have as a child. सेकंड कार्ड में मैं वही कहना चाहूंगा जैसे पिछले कार्ड में शो हुआ है कि आपको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। तो चेंज में मैंने आपको वो बताई दी है 3 चीजें। यहाँ दूसरा कार्ड ये शो करता है चाइल्डहुड एंड इनोसेंस। देखिए किसी भी काम को आप कर रहे हैं तो खुद को मत भूलिए, ये सबसे प्रिंसिपल पॉइंट है। हम किसी भी काम को कर रहे हैं तो हमें इस पूरी बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि आप चीजों को अचीव करते आपकी पर्सनालिटी को ही भूल जाएं। किसी चीज को गेन करने के चक्कर में आपके जो एथिक्स हैं, जो मोरल वैल्यूज हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, जो आपकी पर्सनालिटी को क्रिएट करते हैं, उसको भूल जाए। तो इस सप्ताह थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी काम को कर रहे हैं, अच्छा चेंज ला रहे हैं किसी काम में, वो मेरे 3 फंडामेंटल्स फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज अपने खुद को मत भूलिएगा, खुद की पर्सनालिटी को हमेशा इंटैक्ट रखिए। क्योंकि देखिए रीडिंग्स महीने की हो सकती है, रीडिंग सप्ताह की हो सकती है, रीडिंग साल की हो सकती है, लेकिन पर्सनालिटी आपकी वही शो करेगी जो आप सोचते हैं। तो पॉजिटिव सोच रखिएगा, खुद को समय दीजिए और सप्ताह को थोड़ा सा अच्छा प्रोडक्टिव बनाना आपके हाथ में है। अपॉर्चुनिटीज इस सप्ताह हैं आपके पास अपनी चीजों को अच्छे रूप में देखने की। थर्ड कार्ड Card number 3, we have his ancestors' generations.
Now your guides are really wanting to remind you that you are not alone in this. They are there. Even if you can't see them, they are helping you get along exactly the way you need to go. They are there in the sunlight. They are there in all of the situations. They are there whenever things even go wrong. Everything's actually working out to your best ability. And remember how this snake is kind of intertwining between all of these hands that are guiding you and helping you along your path. Now the snake is a very magical being. Now what this snake means for you is that it's time for you to start shedding your old ways, just as snakes naturally do whenever they shed their skin. If they don't, well, they die. And honestly, if you don't, your growth and development itself will die as well. So make sure that you're okay with letting go of those things that aren't serving you anymore. After all, your comfort zone ultimately will kill you. तीसरा कार्ड भी वही शो कर रहा है। चेंज को समझ लीजिए, चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अगर परिवर्तन के लिए जा रहे हैं तो वो पूरा एक आप डाउन साइड पे आ जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा कार्ड के अंदर। आप चीजों को संभाले रहेंगे, आपको चीजों के रिजल्ट थोड़ा लेट मिल सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो कुछ भी ऐसा एकदम से वास्ट चेंज नहीं होने वाला कि आप सडनली सोचने लग जाए, अरे यार मैंने तो बहुत गलत चेंज कर लिया, या मुझे तो ऐसे ही करते रहना चाहिए था, जो पिछला आप कार्यक्रम करते आ रहे हैं, जो प्रोसेस करते आ रहे हैं। थर्ड कार्ड आपको यही शो कर रहा है कि अगर मैं बात करूँ एंसेस्टर्स की और कार्ड की अगर प्रोफाइल देखते हैं आप, जनरेशन और आपके हैंड्स और कुछ स्नेक्स, तो ये यही कह रहा है कि आप अगर पिछले अपने सारे एफर्ट्स को देखते हैं, पिछले पूरे प्रोसेस को देखते हैं, तो आप एक चीज पाएंगे। देखिएगा, करिएगा, एक बार देखिएगा अपने पूरे प्रोसेस को कि अगर आप ध्यान से एक चीज को देखेंगे तो आपका प्रोसेस तो कंसिस्टेंट है। प्रोसेस आपका कंसिस्टेंट है, लेकिन वो कंसिस्टेंट आपके बैड इफेक्ट्स को लेके है, गुड इफेक्ट्स को लेके नहीं है। दैट मींस जो आपको ट्रेट्स चाहिए, जो एबिलिटीज चाहिए, जो फंडामेंटल्स आपको अगर मैं कहूं इंटीग्रेट करने आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ आपके प्रोसेस का, वो नहीं है, आप कुछ और ही कर रहे हैं। तो इस सप्ताह आपको जरूरी है उन सब चीजों को मिला जुला कर एक पिक्चर देखने की, जहां से वापस आप एक नया शुरुआत ले रहे हैं, जहां से वापस उन 3 फंडामेंटल्स को पूरा कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी, कम्युनिकेशन एंड कमिटमेंट। इस सप्ताह थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए, बैठिए, सोचिए और थोड़ा सा चेंज को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। आपके साथ आपके गाइड्स हैं, आपके साथ आपकी ब्लेसिंग्स हैं। ये सप्ताह अच्छे नोट पर खत्म होगा। तो फिलहाल ये थी आपके साथ 3 रीडिंग्स। That's what we've got for you, dear Aquarius. I hope you have a fabulous week, and I know TJ does too. We'll see you next time. आशा करता हूँ आपके लिए आपका ये सप्ताह अच्छा होगा, स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद। Namaste. Goodbye. Follow me on Facebook for your free birthday reading. Oh, hey. Maybe not. नमस्कार, स्वागत है आपका पॉजिटिव मेरे शो पर। सप्ताह की रीडिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। ये रीडिंग है अब मीन के लिए। अच्छा, मैं आशा करता हूँ कि पिछला सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा और आप स्वस्थ होंगे। देखते हैं ये 3 कार्ड इस सप्ताह आपके लिए क्या लेकर आए हैं। रीडिंग है मीन के लिए। Alrighty, dear Pisces, so we've got some cards for you. TJ, my love, will you do the honors of seeing what cards for the Pisces? 3 cards. 3 cards. Hey. Wand. Do-si-do. That's a dance move. There you go. Cha-cha. So. 3 cards for you. 1, Mean. 2, 3. Alrighty then. So, dear Pisces, the first thing we have for you is wind activation reverse. Now, this seems like it's a moment that's a little stagnant for you. Remember whenever you have this bow and arrow, which is what I like to, it's like what I like to, what's the word? Compare to the movement of life? Something like that. So, it seems like whenever you have that bow, you gotta pull it back, right? And then you launch it. No, that's not how bows work? Yes. Okay. How does it work? Okay, so this is just time where you're pulling it back and aiming it directly to where you want to get it. So your guides are saying that it's okay if things feel like they're going a little bit slow, or it even feels like you're going in reverse. You're not. You're just readying yourself to launch at this point.
So make sure that you remember that in just, I'm hearing about 5 days, you will activate in a way that you haven't before. इस सप्ताह का पहला कार्ड आपके लिए है विंड। बात करते हैं एक्टिवेशन। It was first. सप्ताह की शुरुआत, अच्छा, सप्ताह की शुरुआत में ही आपको जरूरत है चीजों को थोड़ा सा चेंज करने की। चेंज अगर मैं कहूँ, जैसा कि किम बता रही थी कि एक बो की तरह काम करना है, अपने आप को एम को फिक्स कीजिए और कंट्रोल में लाइए। तो देखिए, इस सप्ताह की बात करूँ तो सप्ताह की शुरुआत में ही ये फिक्स कर लेना है आपको कि आपका इस सप्ताह के लास्ट में आपका रिजल्ट आपको क्या चाहिए और आपका प्रोसेस क्या रहेगा। देखिए, जितनी भी रीडिंग्स होती हैं, जितनी भी प्रोग्रेस है आपकी लाइफ की, वो मैं बार बार एक ही चीज कहना चाहूंगा, देखिए रिजल्ट के बारे में इतनी शंका, सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मत रखिए। अपने प्रोसेस को मजबूत बनाइए। देखिए, क्योंकि प्रोसेस अगर अच्छा होगा तो रिजल्ट से ज्यादा भी मिल सकता है। ठीक है, रिजल्ट लाकर आप रिजल्ट सोचकर आप अपने आप को कांस्टेंट बढ़ा देते हैं कि मुझे यही चाहिए, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं। क्या पता उससे कम आपकी अगले वाले के लिए केवल सब्सिडरी पॉइंट हो, आपको उससे ज्यादा मिलने वाला हो, या फिर वो रिजल्ट आपको कुछ और ज्यादा दे सकता है। तो देखिए, इस सप्ताह यही है, अपने आप को एक्टिवेट कीजिए, एक नए प्रोसेस में डालिए, अपने आप को पावरफुल बनाइए। पावरफुल कहने से मतलब है मोटिवेट होइए, एनर्जी से काम करिए, और इस सप्ताह पॉजिटिविटी से भरे रहने वाले हैं आप। अपने रिजल्ट को मत भूलिए, वो रिजल्ट आपके लिए कांस्टेंट साबित हो सकता है। वापस कहूंगा, इस सप्ताह प्रोसेस में ध्यान रखिए। प्रोसेस से कहने से मतलब है, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, उस काम पे अपना बिलीफ सिस्टम रखिए, आपको रिजल्ट अच्छे मिलने वाले हैं। सेकंड कार्ड, Number 2, what we have for you is Dawn, New Beginnings. Now your guides are saying that this activation of yours is starting something brand new. And I'm sure you can feel like there's a whole new wave of energy for you. A lot of people are freaking out because of, what is it, retrograde of some sort, but really this is actually a very empowering time for you. Your guides want you to know that even if things don't necessarily start going the way you plan for them, you're going to start noticing how things are actually falling into place and better things are coming, even though it seems like you're maybe a little bit wonky. So your guides just want you to know, yes, things are starting for you. The dawn is coming, the dark times are over, and remember that even the sun shines on the darkest days. सेकंड कार्ड, देखिए पिछले कार्ड में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्टिवेशन करना है, आपको थोड़ा सा चीजों को चालू करना है, नए रूप में देखना है। ये कार्ड क्लियर शो कर रहा है कि सप्ताह की शुरुआत में आप जो भी चेंज लेके आने वाले हैं, वो आपकी न्यू बिगिनिंग्स को ही आपके पास लेकर आ रहा है। वो प्रोडक्टिवनेस दिख रही है सप्ताह, वो मुझे एफर्ट दिख रहा है सप्ताह, और आपके रिजल्ट दिख रहे हैं। और देखिए, रिजल्ट वो पुराने नहीं हैं, वो रिजल्ट नए रूप में नए हैं जो आपको बेनिफिट देने वाले हैं। सप्ताह बहुत बड़ा, आपका साल बहुत आगे अभी बचा हुआ है, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है कोई भी एक सेट करने का प्रोसेस, कोई भी अपनी चीजें सोचने का, किसी भी प्रोग्रेस में जाने का, किसी भी प्रोसेस में जाने का। सप्ताह बहुत अच्छा है। ये सप्ताह आपको पूरी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जहां आपके लिए न्यू बिगनिंग्स लेकर आएगा, जहां आपके लिए ये न्यू रिजल्ट लेकर आने वाला है। Third card. Last but not least, we have is fire, passion. So just as I said that the sun shines even on the darkest days, remember that that sun is also a light within you. That's right. So you have this fire, this passion, this sun within yourself. And it gets even brighter whenever you do things that you love to do, and those things that, well, you're so passionate about, those things you were created and born to do yourself. Remember, no one has the exact skills that you do. So what lights your fire? Your guides want you to start acting within them and trust that this brand new beginning is coming because of that. So, that passion in you, that thing that makes you lose track of time whenever you do it, that's where you need to be acting. तीसरा कार्ड की बात करता हूं तो बात आती है पैशन की, फायर की। देखिए, बहुत आराम से अगर मैं कहूं, बहुत लाइटली तीनों कार्ड कनेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं आपके एक्टिवेशन की,
एक्टिवेशन की, बात करता हूँ मैं न्यू बिगिनिंग्स की, और मैं बात करता हूँ तीसरे वाला पैशन की। तो देखिए बिल्कुल क्लियर विजन है, सप्ताह में चेंज करना है, चीज़ों को नए तरीके से देखना है, आपको अपने प्लानिंग्स को नए प्लेटफॉर्म पर तैयार करना है, नए प्लान्स लेके आने हैं, न्यू बिगिनिंग्स, आपको न्यू रिजल्ट मिलने वाले हैं। और पैशन से मेरा कहने से मतलब है कि अगर कुछ ऐसा इस सप्ताह आपको लगता है कि नहीं मुझे मेरा मन इस चीज़ में लगता है, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए, देखिए समय अच्छा है, ये सप्ताह अच्छा है, साल बहुत लंबा है, मैं बार बार कहूंगा आपके पास समय भरपूर है चीजों को वापस टर्न करने का। तो अगर आप पैशनेट है किसी चीज के लिए, बिल्कुल मत डरिए, ये समय है आपके लिए थोड़ा सा रिस्क लेने का। और न्यू बिगिनिंग्स कहती है कि ये रिस्क काफी अच्छा रिजल्ट देने वाला है, लाइफ चेंजिंग रिजल्ट देने वाला है। मैं कहूंगा डरिए मत, ये सप्ताह आपके लिए बहुत बड़ा चीज लेके आ सकता है साल के जाते जाते। आशा करता हूँ ये 3 कार्ड्स आपके लिए, 3 रीडिंग्स आपके लिए काफी अच्छी सप्ताह को बनाने वाली हैं। मेरी तरफ से ये 3 रीडिंग्स इस सप्ताह के लिए पूर्ण है, अच्छी है। That's what we've got for you, Pisces. I hope you have a fabulous week, and we'll see you next time. Make sure you subscribe to this channel so you get notified whenever there's another video up. आशा करता हूँ इस सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए और मन छोटा मत कीजिएगा, समस्याओं से डरिए मत, एक प्रोसेस में जाइए, प्रोसेस खुद पे विश्वास कीजिए। अभी भी कहूंगा, बार बार कहूंगा, गोल्स मत बनाइए, गोल्स आपको रोकते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अपने प्रोसेस पे विश्वास कीजिए, गोल्स उसके केवल सब्सिडरी पॉइंट होते हैं। फिर मिलेंगे नए कार्ड्स के साथ, नए रीडिंग के साथ। मैं टीजे किम्बरले, नए सप्ताह नए कार्ड्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। नमस्ते, शुभ रात्रि। Have an awesome week. Bye. Check out my meditations and affirmations playlists on this channel.